लास्ट एक साल में हमने देखा कि सिल्वर वेंट अप टू 4 लाख रुपीज एंड विद इन द जितने टाइम में आप गाड़ियों में बैठ के दुकान पहुंचोगे सिल्वर वापस बेचने के लिए, उसी टाइम में सिल्वर वेंट डाउन फ्रॉम 4 लाख रुपीज टू 2,50,000, राइट। मतलब आपको गाड़ी में बैठ के दुकान जाने का टाइम भी नहीं मिला बिटवीन दिस होल पीरियड। आई थिंक कॉपर इज वन एसेट क्लास विच कैन बिकम द साइलेंट। सिल्वर का सप्लाई बहुत ही रिसाइकलिंग से भी आता है, सो रिसाइकलिंग से सप्लाई आता है, क्योंकि न्यू सप्लाईज लाना is the asset classes completely in doldrums कि भाई कोई बात किसी को टच भी ना करना हो सिल्वर। I think the supply of aluminium and there was a lot of geopolitical plays also over there, so उस वजह से aluminium prices काफी आपको कौन सा मेटल लग रहा है कि इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा गलत समझ रहे हैं ये तीनों में से, और क्यों? I think लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूसली पीपल आर कमिंग एंड टेलिंग कि ईवी से बहुत सिल्वर। ये जो अगले 10 साल के लिए अगर आपको सिर्फ एक मेटल चूज करना हो, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, तो आप कौन सा चूज करेंगे? सो आई थिंक माय आंसर फॉर अ 10-year पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई थिंक लास्ट 4-5 साल में हमने जो देखा दैट इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू कम ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years। आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है द नेक्स्ट डेकेड विल नॉट बिलोंग टू टेक, इट मे बिलोंग टू हार्ड एसेट्स। तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? A lot of investors are new, उनको देखते ही नहीं कि लास्ट 30-40 years में क्या हुआ है इन द मार्केट्स। नमस्ते योगेश जी, वेलकम टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप सर? थैंक यू सो मच श्रुति, आई एम डूइंग रियली ग्रेट, बहुत अच्छा हूँ मैं। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आई एम सो ग्लैड यू कुड मेक इट। वी गॉट इन टच ओवर लिंक्डइन और योर प्रोफाइल इज वेरी डिफरेंट। आपका प्रोफाइल जो है थोड़ा अलग है फ्रॉम द नॉर्मल पीपल आई इंटरव्यू, विच इज एस्ट्रोलॉजिस्ट टेक्निकली एंड पीपल हु डू वेल्थ मैनेजमेंट। तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप अपना बैकग्राउंड बता दीजिए। Okay, so first of all, thank you so much, Shruti, for having me on your podcast. I saw a couple of them and मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा the way you asked questions, and when you reached out, I was like, I definitely have to do this. So about my background, Shruti, a pretty non-conventional background because I started my journey from Goldman Sachs in the India equity research team. So वहाँ पे we were mostly interacting with hedge funds, we were mostly interacting with mutual funds. उनको advice करते थे कि कहाँ पे invest करना चाहिए, which stocks to buy, which asset classes to buy. And I stayed there for a couple of years. And उसके बाद में I thought, okay, Goldman is great. There's a lot of things happening, very interesting things happening within the company. But what I ultimately thought is I want to start something of my own. And when I was on the process of doing that, I got a call from one of the top tech billionaires in India. His name is Mukesh Bansal. I joined him in his company where he was incubating multiple more companies, joined his family office, did a couple of things there, worked there for a couple of years. And uske baad mein I thought, okay, now I've learned everything. Now I should start something of my own. So yes, uske baad mein I decided that I'll start something of my own. I started my journey out in the wealth management space. And uske baad mein I met someone called Ali Azhar. Ali Azhar, he runs this stock advisory firm called Magnus Hathaway Investments. Really impressed by the community that he had made, the value that he creates for his community. And earlier I was working with him on some other pieces of his work, but lately we both decided we should start something together. And then I joined him in Magnus Hathaway Investments as a partner. So yes, that's my current status. Currently, partner at Magnus Hathaway Investments, where we are running our own small cases. We have bespoke investment plans for HNIs. So that's what I do currently, and yes, really looking forward to this conversation. ग्रेट। लुक, मैं लोगों को बता दूं कि मैं योगेश जी का यूट्यूब लिंक और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक मैं सब यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप योगेश जी को फॉलो करना चाहते हैं, यू कैन। मैंने उनके खुद के वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, एंड इट इज इंटरेस्टिंग स्टफ दैट ही इज करंटली डूइंग।
he talks about the stocks, where to invest and how, and so on and so forth. So do follow him. अब योगेश जी, हम आज तो गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करने वाले, इनफैक्ट कॉपर भी, क्योंकि बहुत लोग मुझे कॉपर के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये पॉडकास्ट थोड़ा अलग है. द होल पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी टू शेयर विद पीपल knowledgeable gold, I'd call them themes and sectors to invest in. तो पहले शुरू करते हैं एक बोल्ड स्टेटमेंट से. आजकल बहुत सुनने को मिल रहा है, the next decade will not belong to tech, it may belong to hard assets. तो क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हैं? तो श्रुति, I 100% agree to this. As much as people would say कि ये बहुत bold statement है, but अगर आप last 30 to 40 years का history निकालोगे, so आप देखो 1990 से 1999 there was a lot of things happening in the tech industry. बहुत सारा investment हुआ building the internet, but that was all technological and software investments that were happening. But post from 2000 to 2010 there was a massive build out which happened in power and happened in I think आप कोई भी metal देखोगे उस time पे gold went up like 10x between that period. So वो पूरा everything works in cycles. And it's a decade long cycle, क्योंकि देखो अभी given that a lot of investors are new, उनको देखते ही नहीं कि last 30-40 years में क्या हुआ है in the markets. If you go deeply and understand कि what has exactly happened over the last 40 years, you will figure out everything is a cycle. It's a decade long cycle, and this decade is supposedly to be very, very strong for hard metals. If you look at everything that you look at, right? AI डेटा सेंटर्स जो बन रहे हैं, EVs जो डिप्लॉय हो रही है बहुत ह्यूज क्वांटिटीज में इन द कंज्यूमर इकोसिस्टम, तो इन सब में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी. पावर को बिल्ड करने के लिए जो पूरा इकोसिस्टम है दैट वो उसको बिल्ड करना होगा. उसमें कॉपर, उसमें लॉट ऑफ पीसेस, सिल्वर की भी बहुत यूज़ होगी उसमें, एंड ऑब्वियसली गोल्ड के तो अलग ही रीजंस है जो हम इस आगे कॉन्वर्सेशन में वी कैन डिस्कस. बट टू योर स्टेटमेंट आई 100% एग्री. दिस इज अ डेकेड वेयर यू कैन मेक multiple returns in a lot of these asset classes if you play it smartly. That's the major disclaimer point here. You need to play it very, very smartly. It's so true. And a lot of people think कि मैंने वो इन्फ्लुएंसर को सुन लिया, मैंने वो इन्फ्लुएंसर को सुन लिया कि उसका हुआ बड़ा तो मेरा भी होगा. So it is not that way. People need to invest their money very strategically. तो अगर योगेश जी मैं आपको पूछूं गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में से सबसे बड़ा विनर कौन हो सकता है इन दिस नेक्स्ट डेकेड? So Shruti, to answer your question, सब बहुत बड़े अच्छे विनर्स बनेंगे, but you need to time your entry, you need to time your exit very, very carefully, क्योंकि ये सारे ही गोल्ड को हटा के आप देखोगे सिल्वर एंड कॉपर, so ये लोग बहुत ही सप्लाई डिमांड के बेसिस पे इनका प्राइस मूव होता है. So if you come in at a point, जैसे लास्ट एक साल में हमने देखा कि सिल्वर went up to 4 lakh rupees, and within that जितने टाइम में आप गाड़ियों में बैठ के दुकान पहुंचोगे सिल्वर वापस बेचने के लिए, उसी टाइम में सिल्वर वेंट डाउन फ्रॉम 4 लाख रुपीज टू 2,50,000. राइट, मतलब आपको गाड़ी में बैठ के दुकान जाने का टाइम भी नहीं मिला बिटवीन दिस होल पीरियड. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक द टाइमिंग और एग्जिट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सब सप्लाई डिमांड में चलते हैं. एंड मैं आपको अगर बताऊं कि सिल्वर में एग्जैक्टली क्या हुआ, तो सिल्वर में आप देखोगे तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स थे सोलार और ये सब के, इन्होंने इनको पूरा मार्केट में रूमर्स हो गए कि सिल्वर का शॉर्टेज है. उन्होंने जिनके पास 1 महीने का इन्वेंट्री था वो 3 महीने का इन्वेंट्री स्टॉक करके बैठ गए. सो उस वजह से आर्टिफिशियल डिमांड, आर्टिफिशियल सप्लाई शॉर्टेज क्रिएट करके सिल्वर वेंट अप दैट वे. सो इसमें टाइमिंग और एंट्री एंड एग्जिट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट अक्रॉस silver and copper, because these are industrial materials, these are not strategic जो RBI और दूसरे central governments अपने reserves में रखेंगे, right? But gold has a different story. Gold is more of a strategic asset for central banks here. Now we will discuss the three metals in segments later. This is the whole point of the podcast. लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो अगले 10 साल के लिए अगर आपको सिर्फ एक मेटल चूज करना हो, गोल्ड, सिल्वर या कॉपर, तो आप कौन सा चूज करेंगे और क्यों? Now you're not allowed to choose all three of them, unfortunately, but just one. So I think my answer for
for a 10-year point of view, I think gold is the asset class to be in, because I think last 4-5 साल में हमने जो देखा, that is just a trailer of what is going to come over the next 4 to 5 years. Massive transitions are happening between central governments. पूरा जो ecosystem था जो 2000 से लेके 2020 तक था, that is completely changed now. जो पूरा अगर आप जैसे देखोगे 2022 में यूएस डिड द बिगेस्ट स्टुपिडिटी बाय विथहोल्डिंग पूरा रशिया के $300 बिलियन इन एसेट्स, राइट. उसके बाद से जो गोल्ड की बाइंग चालू हुई है बाय सेंट्रल बैंक्स, दैट इज समथिंग व्हिच इज अनहर्ड ऑफ. बट इफ वी गेट इनटू द डेटा, इट्स completely insane जो kind of buying हो रही है across central banks, not just China, Russia. आप छोटी छोटी countries देखोगे, कजाकिस्तान, ब्राजील, वो लोग भी अभी aggressively buy कर रहे हैं gold. So gold has to be the asset class between 2020 to 2030. So gold has I feel still massive way to go for gold ahead. Okay, you mentioned an important point. यहाँ पे आपने बोला कि यूएस ने रशिया के 300 मिलियन ऑलमोस्ट कुछ एसेट्स रखे थे, तो उसके बारे में you said it's one of the biggest mistakes. Can you explain that a little bit to our audience? Sure. So आप देखोगे 1990 से लेके 2022 तक consistently शेयर ऑफ यूएस डॉलर्स इन रिजर्व्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा था. एंड वो रिजर्व्स कहाँ से आ रहे थे? वो रिजर्व्स गोल्ड कम हो रहा था रिजर्व्स में, एंड यूएस डॉलर बढ़ रहा था रिजर्व्स में. बट 2022 के बाद में व्हाट हैपेंड वाज, given that Russia got in a war with Ukraine, and US said कि boss you cannot access your $300 billion in US treasury bills जो आपके पास है. So सारे central banks they got scared कि बॉस अभी यूएस ने होल्ड कर दिए रशिया के एसेट्स, अगर हमने भी कुछ ऐसा किया जो यूएस को पसंद नहीं आया तो वो हमारे एसेट्स भी होल्ड कर देंगे. एंड अब देखो, चाइना हैड ऑलमोस्ट $800 to $900 बिलियन इन यूएस ट्रेजरीज उस टाइम पे. एंड उन्होंने बोला कि बॉस हम लोगों ने जिस दिन ताइवान को अटैक किया, बिकॉज ताइवान इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक एसेट फॉर देम, एंड दे आर somehow it's just question of time कि कब वो जाके ताइवान को फॉर्मली अक्वायर करने का ट्राई करे. सो उन्होंने बोला जैसे ही हमने इसके बारे में सोचा एंड वो हमारे $800 बिलियन इन यूएस ट्रेजरी बिल्स ब्लॉक कर दे, देन तो वी आर गोइंग टू बी इन अ वेरी बैड सिचुएशन. सो उसके बाद में दे डिसाइडेड कि ठीक है, वी विल स्ट्रेटेजिकली स्टार्ट सेलिंग यूएस ट्रेजरी बिल्स. आप देखो चाइना के यूएस रिजर्व्स $800 बिलियन से कंटिन्यूसली नीचे जाते रहे एंड दे वर अग्रेसिव परचेजर्स ऑफ गोल्ड, राइट. सो दिस इज द स्टोरी व्हिच हैज प्लेड आउट. एंड पोस्ट 2022 the percentage जो gold reserves होते हैं of countries, that is increased I think almost by 2x, and it is continuously increasing. It is not stopping anytime soon. ठीक है, ये last era US Iran war हुआ था, उसमें because of multiple reasons crude oil prices obviously increased, and crude oil prices increase is a bad signal for gold, right? So उस वजह से ठीक है temporary blip देखने को मिला है हमको gold में, and I feel it's a very good opportunity to explore this asset class again. Okay, fair enough. अब जब हम ये तीनों मेटल की बात करें, बिफोर आई मूव ऑन टू द सेगमेंट्स, आपको कौन सा मेटल लग रहा है कि इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा गलत समझ रहे हैं ये तीनों में से, और क्यों? आई थिंक लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं सिल्वर को, बिकॉज आई थिंक अक्रॉस जो भी आई एम putting myself into a retail investor, क्योंकि retail investors को continuously people are coming in कि EV से बहुत सिल्वर का डिमांड आ रहा है, सोलार में बहुत ही सिल्वर का यूज हो रहा है, एंड दे कंटिन्यूसली गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, एंड उनको लग रहा है कि इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, विच इज नॉट ट्रू. It is purely driven by supply and demand, right? And silver as a commodity, and even copper as a commodity, अगर प्रोड्यूसर्स को दिख रहा है कि डिमांड इंक्रीज होने वाला है तो वो लोग सप्लाई भी इन एन एडिक्वेट स्पेस इंक्रीज करते हैं. सो इंक्रीज इन डिमांड इज नॉट इक्वल टू इंक्रीज इन प्राइस. दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे थ्रू दिस मीडियम. Thank you so much, Yogesh ji. अब हम segments में जाते हैं. So our first segment is obviously gold. My favorite segment too, by the way. तो gold, already काफी move हो चुका है. We saw a massive rise in January. I was at a stage where it's like मैं खरीद नहीं, I'm just not going to buy, मैं खरीदने वाली नहीं हूँ. तो इन्वेस्टर्स के माइंड में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या वो जो इजी मनी लोगों ने कमाया था वो बन गया, या अभी भी बिगर मूव आपको लग रहा है बाकी है?
I feel gold, see, if you look at a 1 year view, 2 year view, or a 6 month view, I think you need to take that lens off and you need to put in on a hat जो आप longer term investor as a strategic allocation over your portfolio आपको देखना पड़ेगा as gold, right? And in terms of price action, I think gold ने over the past भी बहुत aggressive returns दिए हैं. So if you look at gold 90, as I mentioned, all of it works in cycles, right? And gold का जब cycle आता है तो it's not like कि ठीक है 2x बढ़ गया gold and now it's over. गोल्ड के जब साइकिल्स आते हैं तो प्राइसेस मूव एक्सपोनेंशियली. सो अगर मैं आपको वॉक थ्रू करूं, सो 1970 से लेकर 1980 तक गोल्ड प्राइसेस $38 से $480 पे चले गए. दैट इज अ 15x रिटर्न ओवर अ 10 year पीरियड, राइट? अ 15x रिटर्न. सो आपको लगा ठीक है 1970 में निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया, उस वजह से 15x बढ़ा. बट उसके बाद में आइए, उसके बाद में 2000 से लेके 2010 तक इस बीच में गोल्ड वेंट अप 8x. उस टाइम पे वी हैड दिस मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम एज सच जो हम बोलते हैं. सो गोल्ड डेफिनेटली इट्स नॉट लाइक अ 2x 3x मूव से खत्म हो जाता है. गोल्ड जब साइकिल्स आते हैं गोल्ड के तो इट्स अ मैसिव साइकिल विच कम्स इन. सो ये साइकिल हम देखें तो इट स्टार्टेड एट $1,300 एंड I personally feel I'll not be surprised कि from a current for $4,300 gold can get to I think $9,000 in the next 3 to 5 years definitely. That's what my personal view is. Obviously, price targets is not something that you should stick with, but it's a very important portfolio allocation bet that you have to take. Otherwise, the portfolio will suffer. US dollar, and I think for Indians too, it is a definitely yes, right? Because you are continuously losing 3 to 4% US dollar के appreciation से. So आपके लिए तो गोल्ड कभी कम होने ही नहीं वाला है, बिकॉज 3 to 4% तो बस नेचुरली ही बढ़ रहा है. नहीं, बात सही कही आपने. यू मेंशन्ड अ बोल्ड फिगर देयर. तो आपको लग रहा है 3 या 5 साल में गोल्ड विल बी एट दैट $9,000 मार्क. तो रुपीस में हम कितना देख रहे हैं? So rupees पे आप देखो $9,000 is almost double from here, right? Gold is currently at 1,50,000 rupees in INR terms. So 3 lakhs तो if rupee does not depreciate further, ठीक है, rupee का 4 to 5% depreciation होता है every year. So additional 3 to 4% का kicker आपको यहाँ से मिल सकता है. So additional 3 to 4% kicker से आप मान लो around 3,50,000 to 4 lakh rupees तक gold I think पहुंच सकता है. And these are very conservative figures. I'm not putting a very aggressive figure here कि ठीक है gold 10 lakhs होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं. I think this is a conservative figure कि ठीक है 10 to 15% depreciation is what on a continuous basis we can see in this mega gold cycle. And this is I think मैंने 2-3 बार बोल भी दिया कि these are very conservative figures. जी नहीं, वो बात सही है. तो there are some investors जैसे कि मैं who feels that investing in gold थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ कि prices fall and I think they will fall to at least that 3,500 mark or 3,700 mark in terms of US dollar, जहाँ पे मैं खरीदना चाहती हूँ. And I see it happening जुलाई अगस्त में. तो अभी अगर लोगों को लेना है and they don't do wait, तो लॉजिक बनता है. So Shruti, I would personally say कि US-Iran war ending is a very big catalyst for gold. And मैं आपको बताता हूँ क्यों. गोल्ड आई थिंक जब US-Iran war चालू हुआ था तब गोल्ड अराउंड 4700 से $4,800 मार्क पे था. And it went down till I think currently at $4,300 mark and अभी भी उसके भी नीचे गया था बीच में. And why did that happen, right? क्योंकि US-Iran war के टाइम पे क्रूड ऑयल हो गया $100, $120. So everyone had to sell their assets and purchase more dollars, क्योंकि डॉलर से ही क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं. सो इस वजह से आप देखोगे तो काफी सारा सेलिंग इन गोल्ड भी देखने को मिला, सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट्स कैन परचेज मोर डॉलर्स. सो अब ये आप देखेंगे तो इस वजह से काफी गोल्ड करेक्शन हुआ गोल्ड का. एंड इसके अलावा आई डोंट सी एनी रीजन कि गोल्ड और नीचे यहाँ से जाना चाहिए. सो श्रुति, माई पर्सनल advice, that being said, not a disclaimer ki not a buy sell advice, but I think it's a very good time to actually allocate more towards gold, because at these levels might not come again in gold, I think over the next couple of years. So you don't see it dropping to the levels I'm waiting for, I assume. जो drop होना था वो हो चुका है.
एंड जो करेक्शन था वो काफी हेल्दी करेक्शन भी था गोल्ड में, जो अपन को देखने को मिला, ऑलमोस्ट 10% करेक्शन. एंड देखो आई थिंक गोल्ड इतना सिग्निफिकेंटली करेक्ट क्योंकि देखो सपोर्ट हर जगह से है, राइट. क्रूड ऑयल प्राइसेस आर नाउ बैक टू $75 until unless बहुत ही वापस से स्पाइक ना हो जाए, तो आई डोंट सी एनी रीजन फॉर गोल्ड टू करेक्ट फर्दर फ्रॉम हियर. अंडरस्टूड. अब आई वांट टू आस्क यू अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड या बिटकॉइन? ज्यादातर मुझे लोग बिटकॉइन के बारे में बहुत पूछते हैं और दे वांट टू नो, आई मीन फॉरगेट वेल्थ प्रोटेक्शन, हाउ अबाउट वेल्थ क्रिएशन इवन? So Shruti, I want to ask you a question कि आपको कौन से एसेट क्लास में जाना प्रेफर होगा, क्योंकि गोल्ड जिसका एग्जिस्टेंस है 100-200 ईयर्स से, एंड उससे वेल्थ क्रिएशन भी हुआ है मैसिव वे में. एंड दूसरा एक एसेट क्लास है जो 5-10% मूव्स दे रहा है रैंडमली, एंड लोग बोलते थे कि बिटकॉइन वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए. बिटकॉइन वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए अगर होता तो $100,000 $110,000 से $70,000 पे तो नहीं आता, राइट, यूएस ईरान वॉर के टाइम पे. एंड आप देखो इट इज अ बेट अगेंस्ट द यूएस सिस्टम. यूएस सिस्टम का तो डेट $39 ट्रिलियन $40 ट्रिलियन हो गया है. So what is the bet against? I personally don't see any point people allocating to Bitcoin in a massive way. ठीक है, आपको चाहिए, everyone has those थिंग्स, राइट, कि मजा आता है 1-2%, उसके लिए 1-2% एलोकेशन आप कर लो, ठीक है, डबल हो गया कभी तो ठीक है आप एलोकेशन कट कर देना. बट एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट क्लास in your portfolio, I think Bitcoin doesn't deserve that place yet. Future में might change, but अभी के लिए तो I don't see it as it doesn't deserve a spot in anyone's portfolio in a major way. Fair enough. Actually, to be honest, मैंने ऑल्ट कॉइन्स में किया था इन्वेस्टमेंट. इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम. जब ट्रम्प आया ना तब मैं आई वाज एबल टू कैश इट and I got a really handsome profit. So for me, I think the traditional assets like the commodities and perhaps Nifties and the stocks are a much better bet, is what I've learned from that. So I will never invest in Bitcoin, or I would never, unless I'd invested in the initial phases and I was a billionaire, I just would not invest in it. Right. I 100% agree to you. Look, we'll move into our second segment, which is silver. अब सिल्वर, यार मार्केट हमेशा कंफ्यूज रहता है सिल्वर के बारे में. कभी ये गोल्ड के साथ मूव होता है और कभी एकदम एक्सप्लोसिव रैली दे देता है. तो आपके हिसाब से सिल्वर का एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है? See, Shruti, सिल्वर का एक्चुअल पर्सनालिटी है being volatile, being massively volatile. क्योंकि अब देखो तो लोग बहुत ही, I think over the last 2 years जब सिल्वर 1 लाख पे था एंड गोल्ड भी ऑलमोस्ट 90-95,000 तक आ गया था. So there is this thing which a lot of people track, which is the gold silver ratio. Right, gold silver ratio, I think everyone सबका argument यही था कि gold silver ratio is at its lowest and now you should go out and buy silver. I think that is one metric which people should track. But वो आप gold silver ratio का chart ही देखो, right, it is so volatile that आप बीच में देखो what is average. I personally feel average is the most useless number, क्योंकि हमेशा average के ऊपर रहता है या average के नीचे रहता है. एवरेज पे कभी कुछ नहीं रहता है, राइट. सो इफ यू लुक एट इट देन यू शुड, अगर आपको सिल्वर वर्सेस गोल्ड ट्रैक करना है तो आप जब भी वो हिस्टोरिकल लो पे आए गोल्ड सिल्वर रेशियो, तब इफ यू बाय सिल्वर देन यू गेट मैसिव अपसाइड रैलीज इन सिल्वर, राइट. दिस इज वन इजी वे टू ट्रैक सिल्वर. बट इफ यू वांट टू do a more complicated way, a more comprehensive way, and if you want to allocate a significant amount in silver, then you should very closely look at silver supply and demand. राइट, क्योंकि सिल्वर का सप्लाई बहुत ही रिसाइकलिंग से भी आता है. सो रिसाइकलिंग से सप्लाई आता है, क्योंकि न्यू सप्लाईज लाना इज अ लिटिल टफ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है. उसमें ठीक है, पीपल रियलाइज ये लॉन्ग टर्म उनके प्रोजेक्शंस होते हैं, सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस होते हैं. उसमें उनको लगता है कि डिमांड बढ़ने वाला है, तो वो अपने आप को 1 से 2 साल पहले ही प्लेस करके रखते हैं. ठीक है, 1 से 2 साल लगते हैं बिल्ड आउट में, एंड दे प्लेस देमसेल्व्स दैट वे. सो आपको बहुत ही क्लोजली ट्रैक करना है कि ठीक है, इफ देयर इज अ सिल्वर का मिसमैच आ रहा है सप्लाई डिमांड में, देन यू शुड अग्रेसिवली इन्वेस्ट. एंड दैट हैपेंड लास्ट 1 year में जब सिल्वर 1 लाख से 4 लाख हो गया. एंड आई पर्सनली फील वो जो डिमांड था वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड डिमांड भी था उसमें से काफी सारा. नहीं, आपने बात सही की. यू आर वेरी राइट कि आर्टिफिशियली क्रिएट हुआ था. बट एंड पीपल, सम पीपल बॉट एट दैट हाइप एज वेल. राइट, 100%. I'm really, देखो कोई भी एसेट क्लास का लेने का टाइम तभी होता है जब वो एसेट क्लास के बारे में कोई बात ना कर रहा हो, राइट. अगर आप
जब सिल्वर 3 lakhs पे था, 4 lakhs पे था, तब मैं कोई भी फैमिली फंक्शन में जाऊं, the only thing people talked about was silver, 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 silver. Everybody forgot about stocks. Everyone forgot about small and mid caps, and everyone was into silver only. I'm sure आपने भी notice किया होगा आपके family events पे, but it's absolutely insane. हाँ नहीं, बात सही कहा आपने। अब सिल्वर का बिगेस्ट डिमांड ड्राइवर अगले 10 साल में क्या हो सकता है? क्योंकि हमने सोलर की भी बात की, ईवी और इंडस्ट्रियल डिमांड, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट डिमांड ड्राइवर? See, I think across the ecosystem, right? Silver is required in EVs also. Silver is required in solar also. Silver is required, and so हर I think defense equipments में भी काफी silver use होता है, right? So सारे ही segments जो अपन ने बात करी अभी लास्ट 1 मिनट में, सारे ही segments बहुत अच्छा करने वाले हैं over the next decade. I think these are going to be the massive growth drivers of the global GDP as well, right? So demand हर जगह से आने वाली है for silver. So the demand की प्रॉब्लम नहीं है, demand is continuously going to increase, and उसके साथ साथ में supply is also continuously going to increase, right? क्योंकि गोल्ड में ये स्पेशलिटी कि गोल्ड में सप्लाई बस 1 या 2% से बढ़ता है एवरी ईयर, एंड अगर आपको उससे ज्यादा बढ़ाना हो देन द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग दैट गोल्ड इंक्रीजेस मोर देन द प्राइस ऑफ गोल्ड. सो उस वजह से गोल्ड का इंक्रीज नहीं होता सप्लाई बहुत मैसिव वे में. गोल्ड का इंक्रीज बस 1 या 2% से ही होता है कंटिन्यूसली. बट सिल्वर का इट इज फ्लेक्सिबल. सिल्वर का प्राइस हाई हो गया, माइनर्स बोलेंगे चलो इट्स नाउ इज द राइट टाइम, चलो मैं इंक्रीज करता हूँ अपना प्रोडक्शन एंड आई बेनिफिट फ्रॉम दैट. नाउ आई एम गोना आस्क यू अ बोल्ड क्वेश्चन यहाँ पे. क्या सिल्वर नेक्स्ट डेकेड का साइलेंट वेल्थ क्रिएटर बन सकता है? I think definitely सिल्वर बन सकता है, बट यू नीड टू टाइम योर एंट्री परफेक्टली. आपको तब देखना है जब सिल्वर के बारे में कोई बात ना कर रहा हो, द एसेट क्लासेस कंप्लीटली इन डोल्ड्रम्स, कि भाई कोई बात किसी को टच भी ना करना हो सिल्वर. आई थिंक द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन एनी एसेट क्लासेस दैट जब उसको एकदम ऐसे लगता है कि इसमें तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है कभी भी. आई थिंक वो टाइम जब आएगा तभी दैट इज द टाइम कि सबका ही जो इंटरेस्ट है टुवर्ड्स सिल्वर, even the producers उनका भी इंटरेस्ट बिल्कुल कम हो जाएगा. एंड दैट इज द टाइम यू नीड टू स्ट्रेटेजिकली सी कि चलो ठीक है, प्राइस इज नाउ करेक्टेड बाय 50-60-70% एंड नाउ इज द टाइम टू बाय. एंड ठीक है, देन आपको यू माइट हैव टू वेट फॉर एन ईयर और टू एंड देन यू विल सी अ मैसिव राइज. एंड सिल्वर में यही हुआ है ओवर लास्ट 2-3 decades. आप देखोगे बढ़ता है प्राइस 3-4x एंड इट गोज डाउन बाय 60-70% एंड देन यू नीड टू बाय इट. इट्स वेरी सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. सो आपको एक प्रोसेस आप लिख लो अपने घर के बोर्ड पे कि सिल्वर जब $30 या $35 हो जाएगा तब मेरे को 10 किलो सिल्वर घर लाना है. गॉट इट. अब हम हमारा तीसरा सेगमेंट देखेंगे विच इज कॉपर, विच इज एन इंटरेस्ट टू अ लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि ज्यादातर कॉपर इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर सकते हैं इंडिया में, लेकिन लोगों को इंटरेस्ट है. तो आज देखें तो एआई स्टॉक्स के पीछे लोग बहुत भाग रहे हैं, लेकिन the interesting thing or argument here is that every AI boom eventually becomes a power and copper story. तो क्या आप इससे agree करते हैं? 100% Shruti. I think copper is one asset class which can become the silent winner of the next decade. आपने सिल्वर के लिए जो क्वेश्चन पूछा, I think that can very beautifully apply to copper as well. कॉपर आप देखो across the segments, be it defense, क्योंकि I think this theme for this decade is going to be defense investments. आप देखो यूएस ईरान में क्या हुआ, एंड यूरोप इज ऑल्सो गोइंग थ्रू मैसिव डिफेंस का कैपेक्स, क्योंकि उनको पता है कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि चलो रशिया से वॉर करने पे जाना पड़ सकता है उनको, एंड दे वांट टू गेट देमसेल्व्स रेडी. एंड यूएस ने बोल दिया है कि नेटो का सपोर्ट अब जब ऐसा कुछ होगा तब एक्सपेक्ट मत करना. यूरोप को पता है कि नेटो का उनको सपोर्ट नहीं आने वाला है व्हेन दे गो इनटू अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद रशिया. सो उन्होंने आप देखोगे डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट 1% ऑफ जीडीपी पहुंच चुका था उनका, जस्ट 1% ऑफ जीडीपी फॉर अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस 1% इज एब्सोल्युटली आई थिंक इनसेन, एंड वो 1% से इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट
3% हो गया अभी, 3x डिफेंस एक्सपेंडिचर, 50 बिलियन यूरो से लेके ऑलमोस्ट 150 बिलियन यूरोस हो गया, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप टू 3% से 5% तक. तो इसमें भी बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर चल रहा है ऑन डिफेंस, एंड डिफेंस का एक बहुत कोर कंपोनेंट है कॉपर, एंड कॉपर के साथ साथ रेयर अर्थ्स भी. सो ये जो सेगमेंट है दैट कैन वेरी ब्यूटिफुली, ऑब्वियसली इसमें भी सेम ही सिस्टम है सिल्वर जैसा कि सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस व्हेन डिमांड इंक्रीजेस. सो इस पे भी इफ यू टाइम योर एंट्री केयरफुली, क्योंकि सिल्वर कॉपर में हमें अच्छा सा राइज, वो सप्लाई शॉर्टेज देखने को भी मिला नहीं है. एंड ओवर द नेक्स्ट 1-2 years जैसे जैसे AI डेटा सेंटर्स का डिमांड बढ़ता है, पावर केबल्स का डिमांड बढ़ता है, तो वेरी ब्यूटिफुली आई थिंक काफी सप्लाई शॉर्टेज आ सकता है कॉपर में भी. एंड इफ यू टाइम योर एंट्री केयरफुली, then you can see a very good 100-200% rally what you saw in silver in the next couple of years. But just I think you need to be patient. It's not like आपने लिया उसके अगले दिन से बढ़ने लग जाएगा. Don't expect that. But very beautiful asset to put your and you need to buy it properly. क्योंकि मैंने देखा था कुछ लोग कॉपर के बार्स बहुत पॉपुलर हो गए थे जब सिल्वर बढ़ने लग गया था, राइट. वो लोग तो कॉपर करोड़ हो जाता है, एंड उसके बाद में आपको कॉपर यूजलेस हो जाएगा एंड कोई नहीं खरीदने वाला होगा कॉपर. सो बाय एन ETF कॉपर का, और मे बी आई थिंक इंडिया में एक ही लिस्टेड कंपनी है, वो पता नहीं उसमें कैसे चलता है. आई हैव नॉट स्टडीड दैट कंपनी वेरी ऑनेस्टली, बट व्हाट वी हैव डन इज फॉर आवर क्लाइंट्स वी हैव आस्क्ड देम टू गेट एन एक्सपोजर टू थ्रू इंटरनेशनल ETFs. कॉपर के ETF में वी हैव आस्क्ड देम टू गेट एक्सपोजर टू. Good to hear. And I suppose if individuals want to invest in copper, then they can count, and you can assist them with that process as well. Right. तो आई थिंक अब हम बकेट्स क्रिएट करने वाले हैं. सो वी गोइंग टू लुक एट 3 स्टॉक्स इन द गोल्ड बकेट्स. तो गोल्ड के लिए अगर वेल्थ पोर्टफोलियो में ऐड करना हो तो कौन से बिजनेसेस या स्टॉक्स आप चूज करेंगे? So I think gold, if you want to play the gold story through the stock market side, I think the only way, and I think a very solid way, is to invest in gold lenders. एंड गोल्ड लेंडर्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल बिजनेस है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे आप लुक एट मुथूट फाइनेंस, जस्ट अ डिस्क्लेमर गाइस, नो स्टॉक recommendations, we are SEBI registered, but I don't want to put out any recommendations because I'll not be able to track when you want to entry and when you want to take an entry and exit. So Muthoot Finance is a beautiful business. कोई भी lender 20+% ROE पे, एंड आप देखोगे मुथूट फाइनेंस हैज ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ लोन बुक. एंड जस्ट टेक अ गेस श्रुति, उन्होंने लास्ट जब से उनका एग्जिस्टेंस है तब से कितने अमाउंट के लोन लॉसेस लिए होंगे फॉर अ 50,000 करोड़ लोन बुक? आई हैव नो आइडिया. 20,000 crore? Just 50 crores of loan losses for a company which has a loan book of 50,000 crores. So it is such a beautiful business. And आप देखोगे क्योंकि it is completely different. The kind of borrowers जो होते हैं gold loan के, they are very different. So I'll tell you an interesting story. I went to Chennai a couple of years back, and I was just very मैं बात कर रहा था वहाँ के locals से, and they said कि हमने मुथूट फाइनेंस में हमारा गोल्ड रखा हुआ है, जैसे ही हमें कुछ नीड पड़ता है हम उनसे जाके पैसे ले लेते हैं, एंड उनको 2 महीने बाद वापस कर देते हैं. सो उनको वो बस 2% चार्ज करते हैं मंथली, बट वो 2% करके द लोन का यील्ड होता है दैट गेट्स टू अप्रोक्सीमेटली 20-25%, राइट. सो उनको 2% ही भरना, उनको बोलते हैं ठीक है आप 1,000 रुपये ले जा रहे हो, आपको 1,100 रुपये वापस करना आके, जस्ट फॉर एग्जाम्पल. तो उसमें वो लोग बना रहे हैं 20-25% ROEs बना रहे हैं. एंड जैसे ही गोल्ड प्राइस इंक्रीज होता है, जो सेम बोरोवर जिसने 100 ग्राम गोल्ड रखा हुआ है वो डबल बोरो कर पा रहा है, राइट. सो उसको भी जो नीड्स है वो भी बोलता है कि ठीक है, नाउ आई हैव एक्सेस टू मोर क्रेडिट, सो आई विल गेट एक्सेस टू मोर, आई विल टेक मोर क्रेडिट दैट वे. सो इस वजह से मुथूट फाइनेंस, आई थिंक इफ यू वांट टू प्ले द गोल्ड स्टोरी, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिजनेस. एंड उसके अलावा आई थिंक मेटल्स को प्ले करने के लिए, ठीक है गोल्ड तो हो गया, बट इफ यू वांट टू प्ले द मेटल स्टोरी, आई थिंक वेरी ब्यूटीफुल कंपनीज इन द इंडियन इकोसिस्टम. लुक एट हिंडाल्को, लुक एट वेदांता. आई थिंक वेदांता को तो नाउ देयर हैज बीन अ डीमर्जर, तो उसके तो बहुत सारे पार्ट्स हो गए हैं बिजनेस के. तो आप स्ट्रेटेजिकली देखोगे कौन सा पार्ट ऑफ बिजनेस इज
you're getting the right kind of exposure. क्योंकि अपन ने obviously इस podcast में बात नहीं करी, but very interesting asset class can be aluminium as well. So look at aluminium for companies जैसे Hindalco आप देखोगे, very big aluminium producer. Vedanta का भी एक company है Vedanta Aluminium. तो वो वाले segments भी बहुत interesting हो सकते हैं over the next 3 to 5 years. And obviously stock prices have already gone up, but as I said, these are not 2-3 year cycles. These are multi year cycles. बीच में corrections आ सकते हैं. Just get into those when the correction is on the way and enjoy it after that. Perfect. Now silver. What would you recommend? कौन से companies are sort of good? What sectors within silver? We talk about. I mean, we haven't looked at the themes in detail. तो आप थोड़ा बता सकते हैं? So in terms of silver को directly play करने के लिए तो इंडिया में as such कोई established company है नहीं, but I think Vedanta is one of the largest exporters and producers of silver in India. So Vedanta ka, I think they were planning to demerge one of the entities also silver ki. I think that is one sector that you can look at. But in terms of that, I think silver clay you should now sort of wait because it's in that consolidation phase, and consolidation phase to hai, but a downward consolidation phase. So this can be a really painful time correction as well. So I would say silver को play करने के लिए I think you should just wait, let it get to some very exciting levels जहाँ पे they can also consolidate and start a upward rally. So you need to wait a little bit in silver, I would say. I suppose you've given me copper. You've mentioned it should be abroad. So anything there for our viewers? One or two things? I think obviously Hindustan Copper is one company in India, but that being said, they are also getting into a massive capex cycle. This just proves what we discussed in the podcast, right? क्योंकि आप देखोगे तो जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स को लगता है कि डिमांड बढ़ने वाला है, वो लोग अपना कैपेसिटी डबल कर देते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज प्लेइंग आउट विद हिंदुस्तान कॉपर एज वेल, राइट? सो दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग द कैपेसिटीज इन कॉपर, एंड over the next, I think it's a very beautiful business. Obviously government style business है, तो you can, it's a pure play on the copper prices. But I think if you want direct exposure to copper, I think that's a better way to do it than copper miners. And uske liye Hindustan Copper can be a little bit of a laggard. If you want to get exposure, download the InMoney app, or any, I think yesterday there was a news ki Zerodha, Dhan sabhi aa gaye hain ab US market mein. So I think get an exposure to that if you want direct exposure to copper. Got it. Now I think you've given me your wild card, which was the aluminiums and the metals, I suppose. Right. So I think aluminium ka application, there's a very, I think last 2-3 years there was a massive short supply of aluminium, and there was a lot of geopolitical plays also over there. So उस वजह से aluminium prices काफी steadily बढ़े हैं over the last 2 years. If you look at Hindalco, आपको बस if you want to study aluminium, आप बस Hindalco का investor presentation खोलो, उसमें वो लोग बहुत ही डिटेल में बताते हैं what has been the price action over the last 4-5 years, and what does the future look like, right? And given that all of these stocks have already rallied a lot, so I think one can track these closely and then wait for it. When it corrects, then you can go ahead and look at those deeply. But I think maybe I think you can wait a little bit. All right, my last and final question for you. 2030 में अगर हम ये conversation वापस करें, and we probably will, तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के रिगार्डिंग इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा सरप्राइज जो हम बोलते हैं, क्या मिलने वाला है? I think gold is not going to be a surprise. It is going to be a steady compounder. So I think that is not going to be the surprise part of it. I think silver can also, I think, be a laggard till then, but I think copper can be the biggest surprise. Because nobody is anticipating, nobody is pricing in the kind of demand that is going to come for copper within defense, within cable power and cables. I think nobody is pricing that in yet, and I think so copper can be, obviously इसमें भी, but there might be a very sudden short supply and then supply might come in, so it might be a surprise. But usme bhi don't be very excited and buy it when it reaches 4 lakh rupees. What most people did during silver. Got it. I want to thank you, Yogesh. You've taken some time. We've run over time. You've rightly identified that earlier. So thank you so much. Thank you so much, Shruti. It was a great conversation. Thank you so much. Bye.